extra lecture, we have seen or we have started the activity whereby we have learned that how we can create a ledger. And the activity is still partially completed. The PDF file is already sent by me on Microsoft Team platform in each classroom. So I think so it is already received by all of you. If it is not downloaded, then please download the files in respect of activity number 1, activity number 2. And today we will try to complete this activity and then try to go with the further ahead. So see, in the yesterday class, we have discussed how the proprietor's capital account has been created, how the drawing account has been created, Mahesh account, Arinuma account, and CGST Act account. So this, I think so, 4 to 5 accounts I have created yesterday in the Teleprime in the BCC Trading Company. If I'm not wrong, you can also see the same thing in the chart of account. Chart of accounts में अगर मैं ledger check करता हूँ, so I think so drawing account it is visible, proprietor's capital account is visible, Mahesh Shah is there, CGST account is there, so and Arunima Patel. So this 4 to 5 ledger we have created successfully yesterday itself. I think so now it is very obvious to you that you can also create such ledger in the Teleprime, but still I will try to create certain more ledgers in the Teleprime so that you will take care of the same thing and you will try to understand how again it is created. Okay. Yesterday we have seen how the single ledger one by one we are creating in the Teleprime software. But today I also like to show you that how the multiple ledger can be created simultaneously in the Teleprime software also. It is also possible, friends. That is, एक साथ में आप एक से ज़्यादा लेजर भी create कर सकते हैं. Before that, let me start creating certain ledger, that is one by one. Then I will again try to show you how the multiple ledgers has been created. सो CGST के बाद SGST अकाउंट है. सो मैं एक SGST अकाउंट बना लेता हूं. उसके बाद हम बाकी के कुछ चुनिंदा अकाउंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेजर सिलेक्ट करेंगे और कुछ चुनिंदा मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो SGST अकाउंट, again if you want to give some alias, pet name, nickname, you can give so. यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुपिंग आएगा. यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट लिस्ट ऑफ ड्यूटी, दैट इज जीएसटी. अगेन दिस इज अ टैक्स स्टेट लेवल टैक्स एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यहाँ पे परसेंटेज हम अभी बाइफरकेट नहीं कर रहे बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल. अदरवाइज अकॉर्डिंगली वॉट एवर द परसेंटेज वी कैन डिफाइन द परसेंटेज हियर. Right now I am making it 0%. Here it is asking for rounding up method. Now in the yesterday session I have not given any clarification on this, what is a rounding up. So let me give you some clarification on this topic also. See, rounding up method, why it is asking, you can see there is a downward rounding, normal rounding, upward rounding. See, whenever you are calculating the tax, if you calculate in the rounding up amount, it will be better to calculate, because in the fraction of the money, it is in the sense of the paise, it will be difficult to calculate and difficult to remember also that what is the tax. And one more thing, when it is the question of the taxes, government taxes, try to pay in rupees, try to pay it in the rounding up. तो इसीलिए यहाँ पे आपको राउंडिंग अप मेथड दिया हुआ है. आप डाउनवर्ड राउंडिंग करना चाहते हैं या अपवर्ड करना चाहते हैं, नॉर्मल आपके ऊपर है. नॉर्मली वी कैन गो फॉर द नॉर्मल राउंडिंग अप. तो राउंडिंग अप टू लिमिट मैं बोल देता हूँ 2 डेसिमल पॉइंट्स. अगेन इट आस्किंग फॉर द बैंक डिटेल, एसजीएसटी अकाउंट का कोई बैंक डिटेल नहीं हो सकता. सो आफ्टर दैट इट इज आस्किंग टू एक्सेप्ट, तो आई एम सेइंग यस प्लीज एक्सेप्ट इट. So this is how I have created the SGST account. The next one is, let me see, salary account. Okay, let me take this account, salary account. Now who will tell me what can be the grouping? यहाँ पे इसका grouping क्या आएगा? Just see the list of the group and tell me what can be the grouping of this ledger. Now it's your turn. इसमें grouping क्या आएगा?
I'm asking to all of you. Is anybody there in the classroom? Hello. Yes, sir. इसका ग्रुपिंग क्या है बताइए, मुझे बताइए तो. What can be the grouping? हाँ जी प्लीज बताइए. एनीबडी? हाँ बोलो. संजना थोड़ा लाउडली बोलो. Expenses, sir. Expenses. Which expenses? Direct or indirect? Direct. 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 Okay. Anybody else want to say something? I got one answer. The grouping can be direct expense. Anybody else is having any other answer? Please tell me. हाँ जी. Okay, let me tell you. See, direct and indirect expense is how you can define, how you can bifurcate. Generally, whatever the business you are doing, if the expenses are directly related with that business, okay, then you can say it as a direct expense. But so far as my knowledge is concerned, let me tell you, in any business, salary cannot be considered as a direct expenses. It has to be considered as an indirect expense. डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा. रीजन मैं बताता हूँ. व्हाट इज द लॉजिकल रीजन? से फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेल परचेज या तो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी का बिजनेस अगर करते हैं तो आपका मेन काम क्या है? व्हाट इज योर मेन पर्पस? दैट इज टू परचेज द प्रोडक्ट एंड टू सेल द प्रोडक्ट. So whatever the expense which are related with the purchase and sales of product, that can be considered as a direct expense. But to, I can say, recruit a staff for the selling the goods, okay, and to pay them salary, it's not a direct expense. It will be considered as an indirect expense. So please याद रखिएगा, आपको इसको indirect expense में लेके जाना है. Here again it is asking types of ledger. डिस्काउंट है, इनवॉइस राउंडिंग, तो मुझे कुछ नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए बिकॉज ये डिस्काउंट पे भी नहीं होगा, इनवॉइस राउंडिंग पे भी नहीं होगा. ओके. उसके बाद वो पूछ रहा है इज जीएसटी इज एप्लीकेबल. द आंसर इज आपको नॉट एप्लीकेबल अनआइडेंटिफाई कर सकते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए अभी, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू डील विद जीएसटी राइट नाउ. हाँ, लेटर स्टेज पे जब एक्टिविटीज आएगी देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डील विद द जीएसटी आल्सो. अभी नो कर दीजिए. इंक्लूड इन द असेसेबल वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन, तो अभी के लिए इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे. अगेन नो, देन यू कैन सेव द लेजर. I hope so this is understood and you understand why I have bifurcated the expense of salary in, that is, indirect expenses. Okay, let me take one more. एक wages मैं छोड़ रहा हूँ. आप wages का grouping क्या आएगा? What you say? Give me the answer. What can be the grouping of wages? अगर फटाफट आंसर मिलेगा तो जल्दी खत्म होगा कंटेंट, नहीं तो आज के लेक्चर में कंटेंट खत्म नहीं हो पाएगा बेटा. Expenses, sir. But which one, direct or indirect expenses? That is true, but direct or expense or indirect expense? Just give me one answer. Please tell me. Indirect. Indirect. See, यहाँ पे आपका आंसर अगेन गलत होगा. It has to be direct or you can say indirect. चलिए एक आपको अगेन लॉजिक बता देता हूँ. डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट ही बोलेंगे, माय मिस्टेक. वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस एंड सैलरी बोथ आर कंसीडर्ड टू बी एट पार, इक्विवेलेंट. सो अगेन अगर यहाँ पे वेजेस का आप लेजर क्रिएट करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा. राइट आंसर. आगे बढ़ता हूँ. कैरेज इनवर्ड दिया है. चलिए कैरेज इनवर्ड का लेजर मैं ग्रुपिंग में बनाता हूँ. यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, इसका ग्रुपिंग क्या आएगा? नाउ टेल मी व्हाट कैन बी व्हाट. फिर से बोलो. हाँ जी बोलिए, फिर से बोलिए. Direct expense. Exactly, the answer is direct expense. Reason, it is directly related with your
business operation. So I am saying it's a direct expenses. Again, this will be not applicable. इसको आप not applicable कर दीजिएगा. Again not applicable. No save. Okay. और एक दो लेजर लेता हूं, फिर मल्टीपल लेजर पे शिफ्ट हो जाता हूं. चलिए, ठीक है. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है. चलिए, advertisement expense. Tell me what can be the grouping, direct expense or indirect expense? Indirect expense. Now that is your right answer. अभी ट्रैक पे आ गए आप लोग. It's a indirect expense. Again it will be not applicable. इसको भी मैं not applicable कर दूंगा. Not applicable. Save. Okay. चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद मल्टीपल लेजर पे शिफ्ट होते हैं. बाकी के ग्रुपिंग का आंसर मुझे आपसे चाहिए तो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ. ठीक है, ठीक है. आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड एक्सपेंस लेते हैं. तो बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में जाएगा? Indirect expense. आउटस्टैंडिंग सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा बेटा. अच्छा, अगर प्रीपेड सैलरी है तो कहाँ पे जाएगा? एग्जैक्टली करंट लायबिलिटीज में जाएगा. आउटस्टैंडिंग है, आपके लायबिलिटी है, इट विल बी गो इनटू द करंट लायबिलिटीज. बाकी कुछ फिलअप नहीं करना है. ओके, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए. ओके, उसके बाद वहां पे एक और लेजर था, दैट इज, लेट मी सी द नेम, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये कहां पे जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस के ग्रुपिंग क्या करें हम लोग, बताइए. हाँ जी, Current asset. करंट असेट्स. चलिए, सही आंसर है करंट असेट्स. देखिए, इसको सारी जगह पे मुझे एंटर नहीं करना है. तो आपको याद होगा हमने एक शॉर्टकट की पढ़ा था, टू सेव इंस्टेंटली. किसी को याद है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव द कंटेंट इंस्टेंटली? चलिए मैं यही बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस ए. अगर मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ तो वो सेव हो जाएगा, मुझे एंटर नहीं करना पड़ेगा. चलिए एक लास्ट अकाउंट ले लेते हैं, फिर मल्टीपल लेजर में शिफ्ट होते हैं. प्लांट एंड मशीनरी. मुझे बताइए इसका ग्रुपिंग क्या आएगा? What can be the grouping of this plant and machinery? Fixed asset. Exactly, fixed asset. See, again बताता हूँ, अगर आप टैली को बोलोगे कि ये फिक्स असेट नहीं है सर, ये डायरेक्ट इनकम है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा. फिर से बताता हूँ, तो प्लीज बी केयरफुल एज अ अकाउंटेंट. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सॉफ्टवेयर को सही ग्रुपिंग बताए. अगर आप सही ग्रुपिंग नहीं बताएंगे तो गलती सॉफ्टवेयर की नहीं है, आपकी है. चलिए, अब मैंने जो लेजर बनाया वो दिखते हैं या नहीं? लेट मी चेक इन दी चार्ट ऑफ अकाउंट. ओके, जो भी बनाया है वो दिख रहे हैं. सैलरी दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी गलती से सनटी क्रेडिटर्स पे चला गया है. देखिए करंट लायबिलिटीज, हाँ वहीं पे दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज में सही है, गड़बड़ नहीं है, तो वहीं पे आ गया है. उसके बाद चलिए, कितने लेजर हमने अभी तक क्रिएट किए? हमने 14 लेजर क्रिएट किए टोटल, उसमें से 2 तो प्री डिफाइन थे, तो 12 लेजर क्रिएट किए. ओके, अब एक और चीज, ये तो हो गई बात सिंगल लेजर क्रिएट करने की. क्या मैं एक से ज्यादा लेजर यानी कि मल्टीपल लेजर अगर एक साथ क्रिएट करना चाहूं तो क्या मुझे प्राइम, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर करने देगा? whether it is having that function which will allow me to create the ledger in the multiple way, that is multiple ledger creation at the simultaneously or at the same time. तो मुझे 2 से 3 या 4 5 10 जो भी लेजर है वो क्रिएट करने हैं, वो भी एक साथ, तो क्या वो करने देता है? द आंसर इज यस. देखिए कहां से वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा. एक्चुअली क्रिएट में अगर आप जाते हैं तो क्रिएट में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है मल्टीपल लेजर क्रिएट करने का. ओके, तो अगेन कहां से मिलेगा सर?
अगर आप ढूंढना भी चाहिए तो देखिए जैसे कि शो मोर, तो शो मोर में आपको नहीं मिलता है, मल्टीपल लेजर वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जा रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके अगेन मैं लेजर चेक कर रहा हूँ। लेजर चेक कर रहा हूँ, अगर आप देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड का जो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल पैनल है, वहां पे आप देखिए एक जगह पे मल्टी मास्टर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? मल्टी मास्टर दिख रहा है? Yes, sir. तो शॉर्टकट की है आपका Alt+H। अगर मैं Alt+H करता हूं तो देखिए मल्टी मास्टर में आपको मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर एंड क्रेडिट लिमिट, तो इसमें मैं मल्टी क्रिएट में जाऊंगा। अगर मैं मल्टी क्रिएट में जाता हूं तो देखिए यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग ऑल आइटम्स, तो मैं ऑल आइटम क्योंकि अलग अलग सारी चीजें एक साथ करना चाहता हूँ, चाहे वो संडे क्रिएटर्स हो, संडे डेटर्स हो, प्लांट एंड मशीनरी यानी कि फिक्स एसेट हो, करंट लायबिलिटीज हो, करंट असेट्स हो, जो भी हो, तो मैं ऑल यहाँ पे ऑल रखूंगा। अगर उसके साथ एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट एक साथ क्रिएट करनी है, तो आप ऊपर ग्रुपिंग फिक्स एसेट दे दीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी हमने डाला था, तो मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दैट इज IQ1 नाम से डाल देता हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है। अगेन कोई और प्लांट एंड मशीनरी डालना है तो प्लांट एंड मशीनरी दैट इज IQ2। ठीक है, तो अगेन प्लांट एंड मशीनरी। इस हिसाब से मैं प्लांट एंड मशीनरी सारी एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl A देके, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी मेरा आ गया। अगेन मैं कीबोर्ड से Alt+H प्रेस कर रहा हूँ फॉर मल्टी मास्टर, whereby I am selecting the multi create, और अब यहाँ पे ऑल आइटम रखूंगा। I will take here all item। अब देखिए हमारी जो एक्टिविटी 2 में है, जो कुछ लेजर मैंने बीच में छोड़ दिए थे, तो वो अलग अलग लेजर अब उठाते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं वो लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करें। जैसे कि एक था IGST, दूसरा था कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए पहले IGST का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो IGST का अकाउंट का ग्रुपिंग क्या आएगा? वो विल से, बताइए आपका GST का सब्जेक्ट है DY में, तो आई थिंक सो IGST क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत जी। बोलिए क्या आएगा ग्रुपिंग IGST का? हेलो, अगर आप नहीं बताएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। IGST का ग्रुपिंग क्या आएगा? आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, कोई आंसर देगा? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो प्लीज बताइए तो सही, इसका ग्रुपिंग क्या होगा? क्या मम्मी को फोन दिया है सबने? अगर ऐसा है तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। मुझे आंसर क्यों कोई दे नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्विच ऑन योर कैमरास। मैं भी अपना कैमरा स्विच ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन करो तो सबके सब लोग। कहाँ पे वो दिखाओ तो चेहरा, कैमरा ऑन कीजिए, बाद में आगे बढ़ेंगे। सो गए क्या सबके सब लोग? अभी तो 1:30 बजा है। ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैमरा ऑन कीजिए। पार्थ, यू आर नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो आप सब लोग जगे हुए हैं ना? क्या नींद आ रही है? किसी को तो नींद आ रही है, दिख रहा है मुझे कैमरे में। एनी इंटरनेट इश्यू, कोई कनेक्टिविटी इश्यू है आप सबका कहीं पे कुछ? हेलो, क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? आ रही है तो फिर मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता है? मैं जब कुछ पूछता हूँ तो सब लोग साइलेंट बैठे रहते हैं, बस चुपचाप देखते रहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा आप सब लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? सही है ना? सी, आप लोग सब लोग घर पे आराम से बैठ के आई थिंक सो AC ऑन करके या तो अच्छी तरह से कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हो, बट वी टीचर आर सिटिंग इन द क्लासरूम अलोन
तो अगर आपसे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आई विल बिकम ब्लाइंड, है ना। चलिए फटाफट बोलिए, आंसर दीजिए, इसका ग्रुपिंग क्या होगा? टेल मी द ग्रुपिंग। चलिए वापस मैं टैली पे आता हूँ। डायरेक्ट टैक्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस। पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, उसके बाद आई थिंक सो एक था कैरेज आउटवर्ड। पहले इसका ग्रुपिंग बताइए। हाँ जी, कैरेज आउटवर्ड का ग्रुपिंग क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट नहीं, जैसे कैरेज इनवर्ड को आप डायरेक्ट एक्सपेंस बुलाते हैं, वैसे ही कैरेज आउटवर्ड को भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद चलिए मान लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे जाएगा, कौन बताएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रुपिंग क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। चलिए उसके बाद मैं बोल देता हूँ व्हीकल। अब देखिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, व्हीकल लोन, तो कहाँ पे जाएगा? लोन्स। लोन। सिक्योर और अनसिक्योर? लोन में सिक्योर और अनसिक्योर लोन में डालो। सिक्योर। एग्जैक्टली, इट विल बी सिक्योर। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो व्हीकल लेके चले जाएंगे, इट इज अ सिक्योर लोन। चलिए उसके बाद आपका आता है बिल्स पेएबल। चलिए ये कहाँ पे जाएगा बताओ? हाँ जी, करंट लाइफ। करंट लायबिलिटीज। चलिए सही आंसर है। उसके बाद है गुडविल। गुडविल कहाँ पे जाता है? इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स। हमारे पास टेंजिबल एसेट का तो कुछ है नहीं, तो फिक्स एसेट में डाल सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ। हाँ डाल सकता हूँ, सही आंसर। ओके, उसके बाद सेल्स है, और आई कैन से सेल्स मटेरियल और मटेरियल सेल्स, व्हाट एवर सेल्स, और प्रोडक्ट सेल्स कर देता हूँ। चलिए तो ये कहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट सेल? सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली सेल्स में जाएगा। अब एक लास्ट ले लेता हूँ इनडायरेक्ट, और आई कैन से लेट मी सी व्हाट टू राइट डाउन। इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसका ग्रुपिंग क्या होगा? इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, दैट इज राइट आंसर। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ 9 के बाद ऑलरेडी और एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। आई विल से यस। तो आप देखिए नाउ इन द चार्ट ऑफ अकाउंट व्हाट एवर द लेजर वी हैव क्रिएटेड, all ledgers are reflecting. You can see 28 group, 24 ledger, out of which 2 ledgers are already predefined. तो हमने 5 ledger create कर लिए। Is it understood? भाई समझ पड़े छे? ओके, यहाँ पे आपको एक F5 दिया है। F5, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। Anybody is having any doubt, any question? नो सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक F5 प्रेस किया था, वापस लेजर में जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर F5 प्रेस करता हूँ तो लेजर व्यू आता है। यू कैन सी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सारी चीजें अल्फाबेटिक ऑर्डर में आई थिंक सो अरेंज हो जाती है। जैसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट अंडर द ग्रुपिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वहाँ पे कोई स्टेट नेम नहीं आता है, जीएस रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। अगेन इसको अगर F5 करता हूँ तो ग्रुप व्यू मिल जाता है। अगेन F5 करूंगा तो ग्रुप व्यू मिल जाता है। F4 करूंगा तो आपको ग्रुपिंग मिलेगा। F4 ग्रुपिंग यानी जैसे कि बैंक अकाउंट कितने हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन मैं F4 में जाता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ करंट लायबिलिटीज। तो यू कैन सी करंट लायबिलिटीज में हमने इतने सारे लेजर क्रिएट किए हुए हैं, तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप बताता है। ओके, so I hope so now how you just understood how to create a ledger
that is whether it is a single ledger as well as the multiple ledger in the Tally Prime software. इतना समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े. Yes, sir. ओके अब चलिए उसके बाद एक और एक्टिविटी मुझे आज करवानी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो आज लेक्चर में स्टार्ट हो पाएगा. सो दैट एक्टिविटी आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट राइट नाउ, बट थोड़ा आपको एग्जांपल आई थिंक सो एक होमवर्क देना है जो शाम को अगर 5 बजे मिलने वाले तो उससे पहले वो होमवर्क हो जाना चाहिए. अगर हो जाएगा तो फिर शाम को एक्स्ट्रा लेक्चर में वो एक्टिविटी करने में मजा आएगा. अगर नहीं होगा आपका होमवर्क तो फिर मजा नहीं आएगा. तो वो पहले एक्टिविटी से पहले मुझे और कुछ भी आपको दिखाना है, शो करना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे और क्या जानने जैसा है. से फॉर एग्जांपल हमने अभी तक देख लिया कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंगल लेजर हो मल्टीपल लेजर हो. अब मान लीजिए उसी लेजर में किसी में मुझे ऑल्टरेशन करना है तो मैं ऑल्टरेशन की फील्ड में जाके लेजर पे जाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी ऑल्टरेशन करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ. नाउ दिस इज वेरी कॉमन, इतने सारे मैंने लेजर बना लिए हैं तो आप जिसमें चाहे उसमें आप एक्टिविटी में जाके या तो लेजर में जाके उसको ऑल्टरेशन कर सकते हैं. तो ऑल्टरेशन ऑलरेडी आप सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है. ओके नई चीज देखते हैं यहाँ पे. ट्रांजेक्शन में पहला आता है वाउचर. पहला आता है वाउचर. अगेन वी इज अ शॉर्टकट की टू हैव एक्सेस टू द वाउचर. कल भी आई थिंक सो एक्स्ट्रा लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर व्हाई F4 इज असाइन्ड फॉर कॉन्ट्रा और व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्ट्रा वाउचर. तो मैंने कल भी बताया था, यस्टरडे सेशन में आपको बोला था that we are going to see in detail and we are going to understand this thing, the when this different vouchers we have to use for the purpose of journal entry. तो जनरली जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग में आप FI से ही पढ़ते आ रहे हैं और आई थिंक सो बहुत ही अच्छा आपको जनरल एंट्री का नॉलेज है. मैं तो मानता हूँ कि मुझसे भी अच्छा नॉलेज आपको जनरल एंट्री का होगा बिकॉज यू आर जस्ट राइट नाउ इन द TY. ओके तो FI SY TY आई थिंक सो थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर तक तो बहुत सारी जनरल एंट्रीज आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में की होगी. अब यहाँ पे क्या है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं विद द टैली प्राइम तो यहाँ पे आपको वाउचर, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन और मैंने वाउचर को ही क्लिक किया था. तो एज यू स्पेसिफिक एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, जनरल एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं दैट व्हाट हैज टू बी डेबिटेड, व्हाट हैज टू बी क्रेडिटेड, देन the next task is for you is you have to identify which voucher you are supposed to use for the purpose of passing the specific journal entry in the Tally Prime software. तो एक एंट्री आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कौन से वाउचर से हम Tally Prime में इंसर्ट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो अगेन एवरीथिंग विल बी मैस अप, इट विल बी गोज रॉन्ग. तो बहुत ही क्रूशियल टास्क है, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टूड कि कौन सा वाउचर कौन सी एंट्री के लिए यूज करेंगे. सी अगेन यहाँ पे ज्यादा वाउचर टाइप एक्टिवेट मैंने अभी तक नहीं किए हैं, जस्ट बेसिक वाउचर ही एक्टिवेटेड है जो बेसिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम F4 टू F9. तो देख सकते हैं 6 वाउचर है. 6 वाउचर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हमने आज लेक्चर में समझना है. ओके आई विल स्टार्ट विद द पेमेंट, कॉन्ट्रा बाद में देखते हैं और आई थिंक सो कॉन्ट्रा भी कर लेते. चलिए कॉन्ट्रा कर लेते हैं. F4 कॉन्ट्रा, आपने इसका नाम सुना है हाँ या ना? फटाफट आंसर दीजिए, मेरे पास 10 से 15 मिनट ही है इसको कंप्लीट करने के लिए. कॉन्ट्रा सुना है? यस सर. ओके तो आप मुझे बताइए कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज होता है? टेल मी व्हाटएवर यू नो, वेदर राइट रॉन्ग डजंट मैटर. सर जब है ना कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन एक ही जर्नल एंट्री में आती है. एग्जैक्टली जब आप कैश और बैंक दोनों लेजर एक ही जनरल एंट्री में अगर इफेक्ट होते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. एक और इसमें एडिशन करना चाहूंगा, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक दैट इज आल्सो कंसीडर्ड इन दी कॉन्ट्रा एंट्री. ओके कल मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था दैट 60,000 हैज बीन विथड्रॉ फ्रॉम द ATM. ओके बैंक ATM, तो उसका एंट्री हमने आइडेंटिफाई किया था कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर बैंक अकाउंट. अगेन सेकंड उसमें क्या ट्रांजैक्शन आ सकता है कॉन्ट्रा में, आपने कैश पेमेंट किया, कैश विड्रॉ किया. ओके व्हेन इट इज हैविंग अ डीलिंग विद द बैंक. And after that I am saying again one more transaction you can add when there is a transaction from one bank to another bank. Say for example I am trying to transfer my fund from Bank of Baroda account to SBI, my own fund. Okay, so my own bank,
तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एंटर इनटू कॉन्ट्रा वाउचर। तो F4 कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री होती है, अब आपको ये याद रहेगा। ओके, F5 पेमेंट वाउचर है। तो जनरली पेमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हु विल से पेमेंट मोड्स कौन से अवेलेबल है आपके पास? ऑनलाइन बैंकिंग मोड। ऑनलाइन बैंकिंग, और इसको मैं ब्रॉडली अगर डिस्कस करना चाहूँ, ब्रॉडली अगर आइडेंटिफाई, there are only two way, one is cash, another is a bank। तो या तो मैं उसको कैश पे कर दूंगा या तो मैं बैंक से पेमेंट करूंगा, राइट। अब जब मैं बैंक बोल रहा हूं तो बैंक इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दैट इज ईसीएस, ओके, इट विल बी इंक्लूड द ई ट्रांसफर, इट विल बी इंक्लूड द गूगल पे आल्सो। तो ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं, ईसीएस भी उसके अंदर आ गया। तो पेमेंट का वाउचर कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ पेमेंट वेदर इन कैश और इट मे बी थ्रू अ बैंक। ओके, रिसीव वाउचर कब यूज करेंगे, अगेन इन द सेम लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो अगेन रिसिप्ट में जाएगा, अगर आप बैंक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और यू आर रिसीविंग अ पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट, तो अगेन रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री होगी। ओके, F7 जर्नल को लास्ट में देखते हैं। F8 की बात करते हैं, सेल्स। तो सेल्स वाउचर कब यूज करेंगे, हु विल से? क्रेडिट या कैश सेल्स होगी। It I can say whether you are doing a cash sales or whether you are doing a credit sales. Sales hai, so it has to be inserted into sales voucher. Same concept is applicable for the purchase also, whether it is a cash purchase or whether it is a credit purchase. The purchase voucher will be used for the purchase entry. Okay, अब one एक छूट गया, F7 journal, ये कब यूज होगा, who will say? डेप्रिसिएशन। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, I have joined with my mobile phone as my laptop is restarted unfortunately। उसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं आपसे थोड़ा सा फोन पे बात कर रहा हूँ। सी, F7 जनरल के बारे में, जनरल वाउचर के बारे में मैं बात कर रहा था। सो आई एम आस्किंग कि ये वाउचर कब यूज होगा, हु विल से? सर डेप्रिसिएशन एंट्री। डेप्रिसिएशन एंट्री, ओके, दैट कैन बी अगेन डेफिनेटली राइट आंसर। अगर मैं इसका सीधा एक लॉजिकल अगर आंसर ढूंढना चाहूँ तो भी मिल सकता है। सी, आपके पास जो 6 वाउचर थे स्टार्टिंग फ्रॉम F4 टू F9, तो जनरली हमने बहुत सारे अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे जाएगा, ये ट्रांजैक्शन का एंट्री इस वाउचर टाइप में जाएगा। तो मेरा सीधा एक सिंपल सा, मैं उसको याद रखने के लिए हिंट दे सकता हूँ कि द एंट्री विच इज नॉट फिटेड
the entry is not eligible to use any other voucher, यानी कि F4 में भी नहीं जाएगा, पेमेंट F5 में भी नहीं जाएगा, F6 रिसिप्ट में भी नहीं जाएगा, F9 से सॉरी परचेज और F8 सेल्स में भी नहीं जाएगा। अगर ये सारे वाउचर में कहीं पे भी अगर कोई एंट्री फिट नहीं बैठता है तो वो एंट्री के लिए एक ही जगह बचती है, दैट इज नथिंग बट द जर्नल वाउचर। तो ये वाउचर और ऐसे एंट्री जर्नल वाउचर में जाएंगे। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया, दैट इज गुड एग्जांपल। अगर से फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, सो द डेप्रिसिएशन विल बी गोज इनटू दिस जर्नल वाउचर। तो डेप्रिसिएशन की अगर एंट्री करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका जर्नल वाउचर में। दैट इज राइट आंसर। Again, still my laptop is started. I have to wait for a while, or I'm stopping here. But one homework I'm going to give you right now, friend. There is one activity number 3. There is one activity number 3, whereby I'm trying to I'm trying to give certain transaction to you. Now, what is your homework? Your homework is that when we are meeting in the afternoon at the time of 5 o'clock, 5 to 6, at that time you have to come with the journal entry solution. आप उस एंट्रीज के जर्नल एंट्री नोटबुक में सॉर्ट आउट करके आएंगे क्लास में। यानी कि अगर मेरा क्लास अटेंड करना है तो मैं ये बोलूंगा कि उसकी जर्नल एंट्री प्लीज आप आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करके आना। ओके, आई डोंट नो, आई थिंक सो कितने ट्रांजेक्शन है, मे बी 15-20, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन आर देयर इन द एक्टिविटी नंबर 3। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एक्टिविटी विथ यू ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म जस्ट आई थिंक सो आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, और वो एक्टिविटी आपको मिल जाएगा। ओके, तो वो एक्टिविटी में आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिए हैं, वो ट्रांजेक्शन आपको पढ़ने हैं, एंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम सेइंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री इन योर नोटबुक। उसका एक जर्नल एंट्री आपकी नोटबुक में प्रिपेयर कर लीजिए, और वो प्रिपेयर करने के बाद हम आफ्टरनून में मिलेंगे टू पास ऑन दिस एंट्री एक्चुअली इन द क्लासरूम, कि ये एंट्री एक्चुअली कैसे पास ऑन होती है टेली प्राइम में। तो वो एक्टिविटी मुझे आज कंडक्ट करवाना इन माय एक्स्ट्रा लेक्चर, एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव दिस एक्टिविटी नंबर 3, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल एंट्री इन योर नोटबुक। यू हैव टू डू एट योर होम। इतना कर पाओगे आप लोग, हाँ या ना बता दीजिए प्लीज। Yes, sir. ओके, तो मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग उसका सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करके आज आफ्टरनून में मुझे मिलने वाले हैं। My laptop is started right now, but Microsoft Team has not been started. So just give me a second. मैं लॉग इन करके वापस आपके साथ एक्टिविटी नंबर 3 आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देता हूँ, एंड देन वी कैन जस्ट वाइंड अप द सेशन। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, I think it's taking too much time. I'm not wasting your time right now. We are ending our meeting right up here now. Okay, but please check your Microsoft team up to 3 o'clock. I think so. उसके बाद मेरा एक क्लास भी है, तो अभी बीच में थोड़ा 10 मिनट का गैप है, तो उस गैप में मैं एक्टिविटी नंबर 3 आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड कर रहा हूँ, और उसका सॉल्यूशन बना के आपको मुझे आज दोपहर में 5 बजे के एक्स्ट्रा लेक्चर में मिलना है। ओके, anybody is having any question, any doubt, you can please ask right now. Anybody is having any doubt, any question? Sir. Yes or no? No, sir. Okay, तो चलिए हम यहाँ पे मीटिंग एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, वी आर मीटिंग इन द आफ्टरनून। प्लीज कम विद द सॉल्यूशन।